My name is Shubhar More. I cleared UPSC for the first time in CSE 2020, and that year I got AIR 693, and I 649. That year I got Indian Postal Service, and next year, that is CSE 2021, I cleared again, and I got AIR 409. And on basis of that exam, I got Indian Revenue Service, Customs and Indirect Taxes. Again in CSE 2022, I cleared, but that year I got DANIX service, but I prefer to remain with the Indian Revenue Service, and currently I'm undergoing training in NASIN Palasamudram, the recently constructed academy of IRS Customs and Indirect Taxes. Just yesterday, I came back from a trek which is a part of our training. We went to the Nilgiri trek, and yesterday morning I came and I saw the invitation from the UPSC Time India to conduct a session and uh, answer few questions. The first was about the मतलब पहला ये था कि इंट्रोडक्शन मतलब मेरा परिचय तो एज आई मेंशन माय नेम इज शिवहर मोरे आई कम फ्रॉम द नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र आई डिड माय ग्रेजुएशन from College of Engineering Pune in Instrumentation and Control in 2017, and after that I started preparing for UPSC Civil Services. In first few attempts, I could not make it, but in my third attempt, I got selected for Indian Postal Service, and after that, I consecutively cleared all the three stages of UPSC CSE for 3 times in a row. So my journey of UPSC preparation started in 2018. So for the first attempt in 2018, I appeared and I cleared prelims, and I wrote mains. But I was not having enough experience, and I did not practice answer writing well, so I could not clear the mains exam. So in the next attempt, that is 2019, I appeared for the prelims. So in my next attempt, that is 2019, I appeared for the prelims, but I could not clear CSAT. Though that year CSAT was not that difficult, but I failed in CSAT. But now, after that CSE 2020, there I again appeared and I cleared all the three stages. And again, same thing in the 2021 and 2022 also. So अभी जो the I have few pointers on which entire discussion will be based, and the third thing in that would be the credit for the success in this the CSC journey. I would say the most important thing is self study, and the second thing is guidance. So these two things I can say that you can clear with this help of these two things. First is self study. इन यूपीएससी है ना, मतलब कितना भी गाइडेंस हो या कितना भी आपको सपोर्ट मिले, पर इवेंचुअली आपको बैठ के पढ़ना है और इवेंचुअली आपको बैठ के आंसर राइटिंग करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। पर कुछ ऐसे डिसीजंस है सिविल सर्विसेज में जिसके लिए आपको गाइडेंस लगेगा, जैसे कि ऑप्शनल कैसे चूज करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपका ऐसे अगर आपने लिखा है तो उस पर रिव्यू कैसे कौन करेगा, आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ के लिए आपको गाइडेंस है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो क्रेडिट है वो कुछ हद तक गाइडेंस और सेल्फ स्टडी को जाएगा। गाइडेंस मुझे मेरे सीनियर्स से मिला, काफ़ी दोस्तों से मिला जो अब सिविल सर्विस में है और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनसे उनको जाता है। और मैंने बहुत बार प्रोफेशनल हेल्प भी ली, जैसे कि टेस्ट सीरीज, वेरियस कोचिंग क्लासेस लाइक विजन आईएएस, फोरम आईएएस, और मैंने जो जीएस की कोचिंग थी वो वज्रम से की थी। और पहले 2 अटेम्प्ट में जब मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था उसकी कोचिंग भी मैंने शबीर सर के पास से की थी। और उसके बाद मैंने एंथ्रोपोलॉजी, जब मेरे सेकंड अटेम्प्ट के बाद एंथ्रोपोलॉजी पे शिफ्ट किया था, और एंथ्रोपोलॉजी की तो मैंने पूरी से पूरी सेल्फ स्टडी की थी, वहाँ पे कोई कोचिंग वगैरह नहीं की थी। तो मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी और थोड़ा बहुत गाइडेंस जो कि क्रूशियल स्टेजेस पे होगा, जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, वहाँ पे प्रीलिम्स के लिए एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ें हैं जिसको पूरा क्रेडिट जाता है मेरे सक्सेस का। और दूसरी अगला पॉइंट ये है कि प्रीलिम्स, कि यूपीएससी में सबको पता है कि प्रीलिम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, और प्रीलिम्स ये नहीं डिसाइड करेगा कि आप आईएएस बनोगे या नहीं बनोगे, पर प्रीलिम्स ये डिसाइड करेगा कि आप मतलब
नहीं बन पाओगे। ये नहीं डिसाइड करेगा आप बनोगे, पर ये डिसाइड करेगा कि आप नहीं बनोगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है स्क्रीनिंग है। और प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अभी अगर तुम देखोगे कि प्रीलिम्स बहुत ही डायनामिक हो गया है, तो प्रीलिम्स के लिए योर स्ट्रैटेजी शुड बी फुल प्रूफ एंड वेरी डायनामिक कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स की, वो काफ़ी हद तक डिपेंड थी सॉल्विंग द नंबर ऑफ एमसीक्यूज। In first attempt, that is 2018, I gave prelims, and that was the first time UPSC changed its pattern. If you see UPSC previous year paper till 2017, you will find a pattern. The logics and everything will be applicable till 2017. But in 2018, UPSC suddenly changed, and that's why from 2018 the cutoff has been 2 digits. But before the 2018, the cutoff was 3 digit. For 2017, the cutoff was 116. So that was one of the toughest paper of the UPSC, and from that 2018, the UPSC prelim strategy shifted. So in 2018, I got somewhere around 106 in prelims. In next attempt, that is 2019, I got to know that UPSC had changed its strategy, and the difficulty level in the prelims will suddenly uh, rise. So I prepared thoroughly. I solved around 20,000 questions, and I'm not joking. I literally solved around 20,000 questions in that. All the uh, test series of two classes, at least two classes. I used to follow the Vision IS and Insights. I used to solve the test series of these two classes, and then there are various online platforms like Vision Insights, and IS Baba. They run programs like 75 days, 60 days plan. So I used to refer those, and I collectively solved somewhere around 20,000 MCQs. And I can see the difference in my scores. In 2019, though I failed in CSAT, but in GS I scored 138. So I would certainly say that to score in GS, you need to solve the MCQs, and through the MCQs, you will develop the ability to solve the MCQs and derive the logics. Yes, in UPSC, in any paper of UPSC, be it last year's or previous years, you will have around 20 to 30 questions which you can solve using the logics. And how you can develop the logics? Through solving the MCQs. So solving the MCQs is very, very important for the prelim stage of the. And since 2019, I never scored below 130. Every prelims cleared with 130 plus in the GS, and that is just because I solved around 20,000 questions in 1 year. That is 2019. After that, I never prepared for the prelims. You need to do it. Something went wrong. Please try again. You need to do it only once. Prelims preparation, you need to do it only once, because after that, what happened, I used to appear for the interview. So after interview, the results, and after results, immediately the prelims. So I used to get only 4 or 5 days time for the preparation of the prelims. So the the strategy that the preparation I did in 2019 was sufficient and enough to clear all the successive prelims. So I would say the first and foremost thing for the prelims should be the practicing the MCQs. And for the CSAT, in 2019, I failed CSAT. Then I thoroughly prepared strategy for the CSAT. For the CSAT, I would say you can refer to 3 books or YouTube channels. There are very good channels for the CSAT preparation on YouTube. For example, the Bhatner IAS and Wi-Fi Study. I followed the Bhatner IAS channel, and on that channel, they specifically design videos for the UPSC CSAT only. So you will have a very targeted approach and questions from the previous year UPSC CSAT papers. So I would recommend that you can refer the Bhatner IAS and just prepare topic wise. If you analyze the previous year CSAT papers, you will find the pattern. For example, there would be question on the time and distance. There would be question on the work, time and distance, velocity, all these problems. So you just go with your go with any particular channel, be it a Bhatner or any other channel, and just follow that channel thoroughly. Okay, and prepare the small tricks and also practice. And for the practice of the CSAT, I would recommend the Arihant's PYQ book. In that Arihant book, entire CSAT syllabus is divided in the topics. And after every topic, you will find 30, 40 questions or 20, 30, 40 questions around. So you just practice those questions and try to attempt PYQ questions. So I think that would be enough for the CSAT. For the reasoning and the quantitative part. And for the comprehension, you just solve UPSC PYQ from 2013 to recent year. I think that would be enough. And right now, the level of difficulty level of the CSAT is increasing. For example, last year, though it was easy, but last to last year, it was very difficult. So I would advise prepare CSAT thoroughly. Don't take it lightly, because you cannot clear prelims with GS.
You have to clear the CSAT. And for broadly about the prelim strategy, the main focus should be on the solving the questions. And now about the preparation before the solving. It is everybody knows that the basic books, for example, the polity, we need to refer the Lakshmikant. For example, modern India spectrum, and then medieval India and ancient India NCRTs. And for the geography, we do the NCRTs, that is 11th and 12th NCRT. 11th is physical geography, and 12th is India physical environment. And next is environment, that is Shankar IS, which is very good book currently. And for economy, I used to refer the Vivek Singh sir's MCQs, and I think that that book is very good for the conceptual clarity. You can solve all economic questions from that particular book. And for the current affairs, you can refer any magazine, be it a Vision, be it a Forum, be it a Insights, Vajiram, any magazine. होता क्या है ना कि अगर विजन आईएएस के मैगजीन से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो किसी मैगजीन से नहीं आएंगे, अगर विजन आईएएस से आ रहे तो हर मैगजीन से आएंगे, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन काफी ब्रॉड होता है। अगर वो विजन कवर कर रहा है तो हर कोई क्लास कवर कर रहा है, तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि आपको कौन सा मैगजीन करना है, कौन सा नहीं करना है। बस एक मैगजीन पिक करो कोई भी, और उसे थोरोली फॉलो करो टिल द लास्ट मंथ। तो इस कंफ्यूजन में मत रहो कि इस क्लासेस का करें या उस क्लासेस का करें, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल एक प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स का देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक एरिया आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। फॉर एग्जांपल, मेरे प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में हिस्ट्री जो था वो मेरा स्ट्रेंथ था। मतलब हिस्ट्री के अराउंड 30-40 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पूरी हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पूरा मिला के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं 30 में से एटलीस्ट 25 क्वेश्चन सही करूँ, और यही में यहाँ से हिस्ट्री से मेरे 50 नंबर निकलने चाहिए, और मुझे बस और 50 नंबर चाहिए पूरे बाकी सब्जेक्ट में। तो कोई तो एक सब्जेक्ट, मेरा तो ये स्ट्रेटेजी रहता था कि जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उस सब्जेक्ट को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और उससे मैक्सिमम नंबर निकालने की कोशिश करो। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो एमसीक्यू है प्रीलिम्स के लिए, उसकी प्रैक्टिस करो। और उसके बाद जो है, और वो है कि मेंस का प्रिपरेशन। अब देखो, मेंस का तो सबसे इम्पोर्टेंट मेंस के लिए गाइड है आपका सिलेबस, कि सिलेबस वाइज अब GS1, GS1 टू GS4 अब पूरा सिलेबस वाइज चलिए। और सिलेबस का एक एक पॉइंट अब आपको हर जगह पे मिलेगा, मतलब हर क्लासेस ने हर एक सिलेबस के पॉइंट के नोट्स बना रखे, आपको बस उतना ही रेफर करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप देखोगे GS1 का इनिशियल पार्ट जो है वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है, जैसे कि अब ये बुक्स है, जैसे कि शून्य आईएएस है, और ओनली आईएएस है, इन सारे क्लासेस, विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल हो, इन सब ने यूपीएससी के सिलेबस वाइज नोट्स बनाए। आप बस उस नोट्स को रेफर करिए, ठीक है। उस नोट से अगर आपको लगता है कि हाँ माइक्रो नोट्स बनानी चाहिए, तो उसी नोट से माइक्रो नोट बनाइए, ठीक है। ज़्यादा बल्कि नोट्स नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सोर्सेस मत रेफर करो, कोई एक या दो सोर्स आप फाइनल करो, और उसी सोर्स को आप पूरे टाइम स्टिक रहो, और उसी सोर्स के अकॉर्डिंग आपके जो भी माइक्रो नोट्स बनाने। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे कि विजन आईएएस में विजन आईएएस का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है उनके साइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके लिए, तो आप वो मटेरियल लीजिए, वहाँ से आप अपने हर टॉपिक पे यूपीएससी का टॉपिक देखो, एक 2-2 पेजेस के नोट्स बनाइए, और उतना ही कंटेंट लिखिए जितना आप एक 10 मार्कर या 15 मार्कर में लिख पाएंगे। उससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो आपके पूरे एफर्ट जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे entire syllabus, GS1, GS2, GS3, GS4, you can prepare the notes topic wise. For example, in GS1 there is a society part. For the society part you can refer uh, any class, be it a Sunya IS, be it a Vision IS, or be it only IS. Okay, take that class notes syllabus wise and make your own notes, not more than one page notes for one syllabus point, because you can only reproduce 150 words or 250 words, not more than that. So your notes should be like that only, that can be reproduced in the exam. So that is the preparation for the main syllabus wise. And if you talk about the sources, then the two things I have mentioned is Sunya IS or only IS. They have prepared content according to the UPSC syllabus for every point. Second source could be the previous year questions, and Sunya IS and only IS, they have prepared the answers for the previous year questions, right? So you just refer those answers, and you can prepare your notes according to that. And these classes have compiled everything.
So if you take 20, UPSC questions from 2013 to 2022, you can get entire syllabus covered with that answers, with that questions. So refer that and compile these things in your notes. So your notes will be comprehensive, which has all the previous year questions, and you are also covering all the topics of the syllabus. So try to refer these previous year questions and their model answers. And last thing, uh, for a particular part, for example, in case of the society and geography part of the GS1, I referred Rishikesh Reddy sir's notes. They are available on the Insights IS website. Sir cleared with 94 rank around 2017 or 18. So you can refer those notes for the society and geography section of the part of the paper one. And for the world history part of the GS1, I referred Anudeep Durishetty sir's notes, which are available on sir's blog. So for the world history, you refer Anudeep Durishetty sir's, and for modern history, society, and geography, you can refer Rishikesh Reddy sir's notes. They are syllabus wise and very concise and crisp. You can reproduce. And for the GS2, for the polity section, you have a Lakshmikant, which we all prepare for the prelims also. So that will cover the polity section of the GS2. And for the uh, governance, for the governance section, I would recommend you can refer Shunya IS, Only IS, or Vision IS. Any one out of these three. You just prepare your notes as per UPSC syllabus and the PYQ. You have to refer that PYQ answers for all the GS, GS1, GS2, GS3, and GS4. You buy those four books which are available in the market of any class, Shunya IS or Only IS, or I think MK Yadav sir has also made collection of the PYQ answers. So you can also refer that. So okay, you can cover the syllabus using the those PYQ answers. And for in GS2, the next part is international relations. For that, you can mention refer any magazine, and for international relation, you can prepare them in between prelims and mains, because they mostly ask questions from the all the development that are happening between prelims and mains. So for IR, you prepare it between the prelims and mains. Okay. Mm. And for the GS3 again economy part, you can cover from Vivek Singh sir's notes that you refer for the prelims. And for the rest of the economy part, you can refer for the rest of the GS3, including the agriculture, security, disaster management. You can refer the Rishikesh Reddy sir's notes, which I referred. That is a good, I think, source for the covering the GS3. And lastly, for ethics, I referred Mudit Jain sir's notes for ethics. I think they are quite good. You can refer that. In that particular book, you will find many diagrams that can be reproduced in paper uh, answers. So I think you can refer Mudit Jain sir's notes for the ethics, and also refer PYQ model answers, that is Shunya IS or MK Yadav sir's. So this is what the sources from which you can cover the syllabus. So this is one part of the mains preparation. Second part is answer writing. First part you are covering the syllabus, you are covering all the broad heads of the syllabus. In the second part, you have to cover the answer writing part. Okay, just try to write two or three answers per day. Okay, just take a questions from PYQ or from any coaching test series. You just take a question and write answer. You can also form a group of four people, so that each one will write two three questions, and you can review every मतलब ग्रुप में आप एक दूसरे के आंसर रिव्यू कर सकते हो. So by doing this thing regularly and consistently, you can improve in your answer writing, and you can accommodate the reviews that are given by your friends. So just do it consistently. You will see a huge change in your answer writing. So I would recommend that writing a one or two answers per day can make a big difference. But the most important part of the main strategy should be answer writing. So answer writing is must. You should start answer writing for next year's mains from now. Just write one or two answers every day. That's it. You can start it from right now. Somebody asked कि answer writing कब से start करना चाहिए. I think you can start it from right now. Just write one or two answer per day, get it reviewed, and every day you will get a new feedback, and you can incorporate that into your answer, so that every day you will be making some progress. So that is what about
about mains, and now the few questions are how to select optional and strategy of the optional. Look at selecting optional is a very big decision in UPSC, I would say. And yes, you should all agree, you should all accept the fact that यूपीएससी में ऑप्शनल पे सिलेक्शंस वेरी होते हैं. ऑप्शनल के नंबर्स हर ईयर वेरी होते हैं, किस ऑप्शनल में नंबर ज़्यादा आते हैं, किस में कम आते हैं. उसके 2-3 रीज़न है. एक तो ये है कि ऑप्शनल के सिलेबस वेरी करते हैं, और दूसरा है कि ऑप्शनल के जो पेपर्स है उसकी टफनेस वेरी होती है. पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो उसके बाद मैंने जब जिस साल मेरा सीसैट नहीं हुआ तो मैंने उसी साल एंथ्रो चेंज किया, और मुझे वो रिजल्ट भी दिखा, क्योंकि उसके बाद मेरा कंसिस्टेंटली एंथ्रो से सिलेक्शन हो रहा है. तो एंथ्रो एक अच्छा खासा ऑप्शनल हो सकता है. एंथ्रो है, सोशियोलॉजी है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो. पर ये हमेशा याद रखना कि हाँ, ऑप्शनल काफ़ी बड़ा डिसीजन है, और ऑप्शनल आपका सिलेक्शन इम्पैक्ट करेगा. तो ऑप्शनल बस आपके ऑप्शनल आप बस इंटरेस्ट या ये चीज़ देखकर मत लीजिए. ऑप्शनल में आपको ये देखना है कि किस ऑप्शनल में नंबर आ रहे हैं, वो ऑप्शनल आपको लेना है. ठीक है. और अगर एंथ्रो की बात की जाए तो एंथ्रो में सिलेबस जो है, हाँ, एंथ्रो का तो मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया है. और एंथ्रो के लिए पर्टिकुलरली जो अक्षत जैन सर का जो बुक है, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा गया है, वो बुक काफ़ी अच्छा है. मुझे लगता है कि इस बुक से अच्छा खासा ऑप्शनल का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. ऑल्सो यू कैन डू वैल्यू एडिशन फ्रॉम सम अदर नोट्स लाइक अमित नारायण सर्स नोट्स, एंड देन Mandar Patki sir. For Anthro paper 2, you can completely rely on Mandar Patki sir's notes. And for the paper 1, you can refer Akshat Jain sir's book and Amit Narayan sir's notes. ये जो सोर्सेस एंड बुक लिस्ट तो मैंने बोल दी है. फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है, हाँ, और एक क्वेश्चन है कि टॉपर्स की कॉपी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उससे कैसे एनालाइज कर सकते हैं. देखो, टॉपर्स कॉपी मुझे लगता है कि हाँ, मतलब आप टॉपर्स कॉपी से काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं. आप उसको अगर आपको अच्छे से यूज़ करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि टॉपर्स कॉपी आप लीजिए, और उसमें जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आप हर रोज़ उसमें से 2 क्वेश्चन पिक करिए और वो क्वेश्चंस लिखिए आप खुद से. फिर उसके बाद आप टॉपर्स के आंसर्स पढ़िए, तो आपको डिफरेंस समझ आएगा कि आपने कौन से पॉइंट मिस किए हैं या टॉपर्स ने कौन से पॉइंट ज़्यादा लिखे हैं, क्या वैल्यू एडिशन की है, वो आपको वहाँ से पता चलेगा. तो इस तरह से आप हर रोज़ सीख सकते हैं कि मतलब पर्टिकुलर आंसर टॉपर ने कैसा लिखा है और आपने कैसा लिखा है. सो यू कैन कंपेयर एंड यू कैन लर्न. आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू यूज द टॉपर्स आंसर स्क्रिप्ट. बाकी जो कुछ क्वेश्चन है कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप मेंस देखोगे 2013 से आप 23 है, तो 10 साल के पेपर आपके पास है. 10 साल के पेपर में यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और आपके क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे. तो आपको पूरा आपका प्रिपरेशन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के अराउंड बेस्ड रखना है, क्योंकि अगर आप मेंस की बात करोगे तो 10 साल में यूपीएससी ने सिलेबस का हर पॉइंट कवर किया है. तो अगर आपने हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. और जब प्रीलिम्स की बात आती है, प्रीलिम्स के लिए आप पीवाईक्यू से आपको स्ट्रेटेजी पता चलेगी. यूपीएससी के जो एग्जामिनर जो है उसकी थिंकिंग प्रोसेस पता चलेगी, थॉट प्रोसेस पता चलेगी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे डिवाइस किया जाता है. देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स में ना 2 चीज़ें होती है, एक होता है पैटर्न, एक होता है लॉजिक. पैटर्न कभी रिपीट नहीं होगा. अगर तुम देखोगे हर साल के पेपर का पैटर्न अलग है, पर हर साल लॉजिक सेम है. हर साल यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर एक लॉजिक पे बेस होता है. इसीलिए तुम अगर देखोगे पेपर, तो एवरी ईयर यू विल हैव समवेयर अराउंड 20-30 क्वेश्चंस which can be only solved using the logic. You don't need any reading, any extra source. You can just get 20, 25, 30 plus marks using the logics. So how to develop those logics? Solve the PYQs and analyze the pattern, analyze the logic, how UPSC, how examiner is framing the question. फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि कोई एक क्वेश्चन है, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पर आप अगर ऑप्शंस को आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 4 स्टेटमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, किसी एक या 2 स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन एड्रेस होगा. तो यही लॉजिक है. एग्जामिनर आपको वो 4 स्टेटमेंट चेक नहीं करना चाहता, वो बस आपको एक स्टेटमेंट पता है या नहीं यही देखेगा. सो यू शुड जस्ट
try to analyze these logics and try to solve the previous year questions with this logics. अगर आप सेम केस अगर मेंस की बात की जाए, हाँ, तो मेंस में तो थीम्स रिपीट होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे पेपर वन में लिटरेचर पे क्वेश्चंस आते हैं, पेपर वन में जीएस वन में फिलोसॉफी और आर्किटेक्चर जो लिंक है इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली रिपीट होंगे, तो आपको इस क्वेश्चंस पे फोकस करना है। और बाकी जो है हाँ, ये क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स और मेंस क्या प्रिपरेशन साथ में किया जा सकता है या कैसे अलग-अलग करना चाहिए? अभी देखो, अगर आप 25 के अटेम्प्ट की अगर बात कर रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो कि 25 में आप लिखोगे, तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और प्रीलिम्स और मेंस अभी आप दिसंबर या जनवरी तक तो आपको साथ ही करना है। यू हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द ऑप्शनल। ऑप्शनल जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, उस ऑप्शनल को आपको दिसंबर या जनवरी तक फिनिश करना है। यू शुड गिव एट लीस्ट 3 to 4 months for optionals. And in UPSC, be it any optional, you will need at least 3 to 4 months to finish the optional syllabus. So I think this is the time when you are, if you are planning to appear for 2025 attempt, then this is the time to start with your optionals. And uh, while preparing the optional, you prepare the syllabus, you cover the syllabus. At the same time, you can join any test series, or you can also do answer writing, previous year answers, or you just join a test series and try to prepare the optional syllabus and also try to write the answers for the optionals till December. And at the same time, along with the optional, you just try to cover the basic books. For example, the Modern India, like the Spectrum, NCRTs, then the Polity, Lakshmikant, and for the environment, that is Shankar IAS, and for the economy, Vivek Singh. So till January, mid-January or December, you just try to finish the basic readings and your optional. That should be your priority. And answer writing of optional till the January, December, mid-January or December, that should be your priority. And after that, you can completely shift towards prelims. So after mid-January, you should start prelims preparation. Entire time should be given to prelims. And for prelims, your division of the time should be that half part you should give to cover the theory portion, basic syllabus, basic books, current affairs, and half part you should give to solving the MCQs. And in prelims, both GS and CSAT equally important. You should divide your time accordingly. Next important question is now the NCRTs, question about NCRTs. आई वुड से एनसीईआरटीज अगर तुम देखोगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आज भी एनसीईआरटीज से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमारा जो प्रिपरेशन का स्टार्ट है दैट शुड बी विथ एनसीईआरटीज। एंड एनसीईआरटीज ओल्ड या न्यू, वो काफ़ी डिबेट होता है। मुझे लगता है कि जो भी अवेलेबल एनसीईआरटी है राइट नाउ, यू रेफर दैट न्यू एनसीईआरटी, बिकॉज अब ऐसा तो नहीं होगा कि यूपीएससी जाके ओल्ड एनसीईआरटी निकालेगी और उसी में से क्वेश्चन पूछेगी। जो अभी अवेलेबल है सिलेबस, उससे पढ़िए, दैट इज न्यू एनसीईआरटी। एंड करंट अफेयर्स का दो तरह का प्रिपरेशन है। एक आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और दूसरी चीज़ आप मैगजीन कर सकते हो। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि विदाउट न्यूज़पेपर यूपीएससी का प्रिपरेशन होगा ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि मैंने कभी यूपीएससी में क्लियर किया है पर कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। और ये दोनों लोग सही है। मतलब ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, या कहीं पे ये भी नहीं लिखा है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है तभी आप क्लियर होगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको बस एक चीज़ है कि आपको करंट अफेयर्स कवर करने, वो कहीं से भी करो, या वो चाहे या न्यूज़पेपर से करो या किसी और सोर्स से करो। मैंने इंटरव्यू टाइम तक कभी न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं ना, मैं पढ़ नहीं पाया। ठीक है, पढ़ना चाहिए, अगर तुम्हें आदत है, तुम्हारी हैबिट है, न्यूज़पेपर अच्छा है, पढ़ो, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा। पर मैं पढ़ नहीं पाया था, तो मेरे लिए एक ही ऑप्शन था कि करंट अफेयर मैगजीन से कवर करो। तो मैं विजन आईएएस की मैगजीन काफ़ी थरोली करता था। मैं मंथली मैगजीन भी करता था, और पीटी 365 जो आता है प्रीलिम्स के टाइम, और मेंस के टाइम मेंस 365 आता है, तो मैं ये तीनों चीज़ें विजन आईएएस की करता था। मैंने पहले ही कहा है कि आप किसी भी एक क्लास की करिए, कोई डिफरेंस नहीं है। विजन आईएएस से आएगा तो हर क्लास से आएगा,
तो ये बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। आप किसी भी क्लास की मैगज़ीन पिक करिए या न्यूज़पेपर अगर आप कर रहे हो, तो न्यूज़पेपर के डेली नोट्स बनाते रहिए और वो नोट्स का कंपाइलेशन आपको एंड में पढ़ना होगा। ये जो सारे क्वेश्चंस थे कि मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर ये सारे अब एड्रेस कर दिए मैंने। मैगज़ीन्स आप कोई भी क्लास का मैगज़ीन उठाओ, उसको कवर टू कवर पढ़ो। उसमें आप फ़िल्टर कुछ मत लगाइए, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे बोला जाता है ना कि एवरीथिंग अंडर द सन, ये यूपीएससी का सिलेबस है। तो आपको कौन-सी चीज़ कभी कहीं पढ़ी हुई कब हेल्प करेगी, आपको पता नहीं है। तो आप जितना आपने डिसाइड किया है ना, उसमें बस आप एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए। मतलब इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल रीड विजन मैगज़ीन, देन रीड इट कवर टू कवर। समथिंग समवेयर इट विल हेल्प। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोचिंग। कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो, यूपीएससी में तुम्हें दोनों तरह के टॉपर्स मिलेंगे। एक है जिन्होंने कोचिंग करके किया है, एक है जिन्होंने बिल्कुल कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए कोचिंग नहीं की है। तो मैं ये कहूँगा कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ों का गाइडेंस चाहिए, वो आपको अभी सोशल मीडिया, यूट्यूब, सारे इतने टॉपर्स के चैनल हैं, वहाँ से मिल जाएगा। तो मतलब कोचिंग लगाना मैंडेटरी नहीं है। विदाउट कोचिंग आप आराम से कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज़, हाँ भाई, कोचिंग का एक ही रोल है कि मुझे लगता है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग की पिक करिए और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का ये रोल है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया है तो आप करोगे प्रिपरेशन, आप जाके वहाँ आंसर लिखोगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं किया, अगर आपने पैसे वहाँ पे नहीं दिए, तो मतलब आप नहीं करोगे। तो बस इसी चीज़ के लिए मुझे लगता है कि यू शुड जॉइन अ टेस्ट सीरीज़ फॉर द प्रीलिम्स एंड एज वेल एज फॉर द मेंस। टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए प्रिपरेशन होता है, दैट्स इट, इसीलिए लगाना है। और बाकी एक क्वेश्चन है कि ये जो सोशल मीडिया, ये ऑनलाइन ऑफलाइन डिबेट जो है यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो इसका कैसे यूज़ करें? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो, यूपीएससी का प्रिपरेशन ऑफलाइन पूरा किया जा सकता है। हर चीज़ ऑफलाइन भी अवेलेबल है, हर चीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। पर हाँ, जब सोशल मीडिया की बात आती है, तो ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मुझे लगता है कि इन सब से तो जब तक आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, दूर ही रहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा, मतलब हेल्प से ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा इन सोशल मीडिया से। हाँ, यूट्यूब यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो। बट आई वुड से मतलब कीप इट लिमिटेड, क्योंकि बेसिक प्रिपरेशन जो है आपको ऑफलाइन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन है। आपको जाके वहाँ 3 घंटे बैठ के लिखना है, तो आपको पेपर वहाँ लिखने की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। तो हाँ, यूट्यूब पे आप बस कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक का कंटेंट अच्छा किसी टॉपर ने कवर किया है, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया रेफ़र कर सकते हो। बट ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तो व्हाट्सएप ये सब यूज़लेस है, ये किसी काम का नहीं है प्रिपरेशन के लिए। और टेलीग्राम पे टॉपर्स के कुछ ग्रुप्स हैं, मुझे लगता है कि उसका यूज़ बस उसी के लिए रखें। टेलीग्राम पे बाकी चीज़ें जितनी अवॉइड हो सकती है, उतनी मुझे लगता है करनी चाहिए अवॉइड। आप बस हर चीज़ की प्रिंट भी ला सकते हो, लोग आईपैड भी यूज़ कर सकते हो, पर सोशल मीडिया से मुझे लगता है थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आप बहुत मेजॉरिटी लोग, अगर आप कोविड के टाइम पे देखोगे, कोविड के टाइम पे हर कोई अपने घर पे प्रिपेयर कर रहा था। उसी टाइम, उस टाइम पे भी हर, मतलब बहुत लोगों ने क्लियर किया है। तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। अब दिल्ली के बाहर हर चीज़ अवेलेबल है। हर हर कोई क्लास, हर चीज़ ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है। आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो, आप घर बैठ के टेस्ट सीरीज़ लिख सकते हो और उसको अपलोड भी कर सकते हो। तो दिल्ली जाना बिल्कुल ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि हाँ, जब इंटरव्यू की बात आती है, तो आप दिल्ली, आपको जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड गिव एट लीस्ट 4-5 मॉक्स टू हैव एन एक्सपीरियंस। एंड in Delhi, the many classes organizes good quality mocks. So for the interview, I think you should go to Delhi. But for prelims and mains, there is no need. आप कहीं से भी प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपेयर कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए आपको बस एक, जब आपकी इंटरव्यू की डेट है, उसके 1-2 महीने पहले या 1 महीना पहले आप दिल्ली जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। हाँ, अब इंटरव्यू पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं अभी एड्रेस कर देता हूँ। कि हाँ, इंटरव्यू का एक है कि अब जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, मैंने अभी तक यूपीएससी के 4 इंटरव्यू दिए हैं। और उसमें अगर मेरा स्कोर देखा जाए, तो सबसे पहले 165 था, उसके बाद 183, 193 एंड 180। तो कंसिस्टेंटली मेरा इंटरव्यू का काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, और वो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू के बाद थोड़ा खुद पे काम करके वो इम्प्रूव किया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, वो अभी मतलब इतने सारे इंटरव्यूज़ हैं, तो मैं जो बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें जो है वो मुझे मतलब लगी थी कि, अब मेरा एक जो इंटरव्यू था मनोज सोनी सर के बोर्ड का था। तो मनोज सोनी सर का मतलब
लास्ट टू लास्ट ईयर का जो इंटरव्यू था वो मनोज सोनी सर का था। उसमें मुझे सर ने 193 नंबर दिए थे। तो इंटरव्यू में देखो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना वो आप पहले ये करो कि उन जो वहाँ पे लोग बैठे हैं उनको बिल्कुल लाइटली मत लो, क्योंकि आप उनका आपका जितना एज है उतना एक बंदे का एक्सपीरियंस है, और वैसे वो 5 लोग वहाँ पे हैं और वो पूरे टाइम यू विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन। दे विल लुक एट यू फॉर हाफ एन आवर एंड आधे घंटे में हर किसी की पर्सनैलिटी मुझे लगता है कि कोई भी जज कर सकता है अगर 4-5 लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो। सो इंटरव्यू में यू शुड नेवर फेक, यू शुड बी रियल। आपको जितना आप रियल हो सकते हो उतना रियल करना है, क्योंकि उस जो इंटरव्यू था मनोज सोनी सर का बोर्ड जो मेरा था, उसमें मुझे काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे और काफ़ी स्ट्रेसफुल इंटरव्यू हुआ था। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि इंटरव्यू मोस्टली डैफ पे होता है, तो मेरा वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हद तक डैफ के बाहर हुआ था। तो पर फिर भी आप कैसे उसको मैनेज करते हो, कितना आप ट्रूली आंसर्स करते हो क्वेश्चन को, वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था उसी इंटरव्यू में कि तब ये जो वुमेन रिजर्वेशन जो बिल था ना, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो ये क्वेश्चन था। तो मैंने वहाँ पे अब इस पे लॉजिकल स्टैंड ये है ना कि हाँ देना चाहिए, कि मतलब बहुत लोग ये कहते हैं कि हाँ देना चाहिए, पर मुझे उस टाइम ये लगा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो अब वहाँ पे आपको इंटरव्यू में ये है कि आप स्टैंड कोई भी लीजिए, यू शुड जस्टिफाई इट। ओके, और आपका जो जस्टिफिकेशन है अगर वो उनको पसंद आया तो मतलब आपका स्टैंड कुछ भी रहे, दैट डजंट मैटर। इस केस में मेरा जस्टिफिकेशन ये था कि आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी ना। पंचायत वेब सीरीज में वो जो सरपंच है वो प्रधान जो है उसकी वाइफ होती है, पर आपको पता है कि वो पूरे काम जो है वो प्रधान कर रहा है उस वेब सीरीज में। मतलब वो जो बस फॉर नेम सेक है, वो जो लेडी है वो बस फॉर नेम सेक प्रधान है, बाकी हर चीज उसका हस्बैंड कर रहा है। तो सेम एग्जांपल मैंने वहां पे दिया था कि हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि द सेम थिंग दैट वी कैन नेवर गारंटी दैट इट विल नॉट हैपन in case of the MPs and the MLAs. Though though the female MLA or MP can be face, and the person operating from the behind can be male, like that happened in the पंचायत वेब सीरीज। तो शायद वो उनको जस्टिफिकेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और उन्होंने सेम क्वेश्चन मुझे तब ये भी तो इस ये एक रीज़न रहा होगा जिससे मुझे 193 नंबर दिए। और दूसरा क्वेश्चन मुझे ये था कि जो यहाँ पे जो 370 जो है, कश्मीर में जो 370 हटाया गया, तो वो कैसी मूव थी। तो उसमें तो मैंने वही था कि मैंने उसका भी काफ़ी अच्छी तरीके से जस्टिफिकेशन दिया कि जब 370 आया था, आर्टिकल 370 उसमें लिखा था कि ये टेम्पररी है, कुछ दिनों में ये निकल जाएगा, निकालना चाहिए। तो इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ने निकाला। तो फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देन व्हाई देयर आर प्रोटेस्ट, और सिचुएशन क्यों नॉर्मल नहीं हो रही। तो इंटरव्यू में आप जितना बैलेंस रह सकते हो ना ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप वहाँ बैलेंस रहना है। अगर जो प्रीवियस क्वेश्चन था जो मैंने बोला था कि नहीं देना चाहिए रिजर्वेशन, पर एट द सेम टाइम मैंने एंड में ये भी बोला था कि सर बट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन रिजर्व सीट फॉर women in a political parties. That particular political party should give this much tickets to the female candidates. So that can be one way. Second way, that we should go for the political empowerment of the women. And these are the long-term measures, and these measures would be sustainable. सो आपको आपके आंसर को दोनों साइड से बैलेंस करना है, और जहाँ पे स्टैंड लेना है वहाँ पे क्लियरली स्टैंड लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे सही गलत पे नंबर है, वहाँ को आपकी जस्टिफिकेशन पे नंबर है, और वहाँ आप फेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप तुम वहाँ देखोगे कि यू विल बी देयर फॉर 25-30 मिनट्स एटलीस्ट। सो the first question they will ask, and in between some member will ask similar question in some other context, then they will think, so how consistent your answers are, and you will be judged upon that. Okay, so for interview you should be honest with your answers and you should be real. और एक क्वेश्चन है उसमें इंटरव्यू को लेकर के डैफ कैसे भरना चाहिए। हाँ, डैफ है कि इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंग मतलब मेजॉरिटी लोगों के इंटरव्यू जो है वो डैफ के अराउंड होते हैं, पर गारंटी मतलब नेसेसरी नहीं कि सबके होंगे। तो डैफ में आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि जो भी आपको हाईलाइट करना है वो आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट में रखिए। फॉर एग्जांपल मेरा अगर हॉबी था वो नेचुरल फार्मिंग था, तो मैंने सबसे पहले रखा था नेचुरल फार्मिंग।
तो मेरे इंटरव्यू में हर जगह पे नेचुरल फार्मिंग का डिस्कशन होता था और वो एक्चुअल इंटरव्यू में भी हुआ। तो आपको जिस चीज़ को हाईलाइट करना है वो आप रखिए पहले, जो भी आपका हॉबी है, और वो ऐसे रखिए कि जिसपे आपने काफ़ी रिसर्च किया हो। मतलब ठीक है, आप एवरीडे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पर आपको उस चीज़ को लेकर बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और जब आप उस टॉपिक पे बात कर रहे हो, मतलब आपकी जो पैशन है, दैट शुड बी विजिबल। वहाँ आपको उनको लगना चाहिए कि यार हाँ, ये बंदा काफ़ी पैशनेट है इस चीज़ को लेकर। और आपको अब कुछ लोग डालते हैं कि और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी ऐसी एंगेजिंग हॉबी रहेगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अब आप म्यूज़िक, कुछ लोग डालते हैं, क्रिकेट डालते हैं, वेब सीरीज़, वॉचिंग वेब सीरीज़ एंड टीवी सीरीज़। इस पे मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। तो ये जो थोड़ी पैसिव हॉबीज़ है, जो मैं तो कहूँगा कि ऐसे हॉबीज़ थोड़ा अवॉइड करो। जो एंगेजिंग है, जैसे कि कुकिंग है, कुकिंग अगर आप डालोगे, तो कुकिंग पे डिस्कशन होगा। मतलब ऐसे हॉबीज़ है जो कि पिक किए जाएँगे, तो आप ऐसे डालने की कोशिश करिए। और बाकी डैफ में वो चीज़ें हाइलाइट करिए, और जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कहीं अ, 4th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड में कुछ कहीं पे कुछ किया हो, तो वो सब अवॉइड करिए। जो मेन है, जो कि सबको पता है, वही चीज़ें डालिए। और डैफ जितना सिंपल रखोगे, उतना उनके लिए आसान है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप बाहर वेट कर रहे हो, तो वो जो मेंबर्स होते हैं उनके पास आपके डैफ जाता है, चारों पांचों मेंबर के पास। तो उस डैफ के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस बनाते हैं 5 मिनट में। तो उनको बस ये लगे कि 5 मिनट में आपका डैफ देखने से कुछ ऐसी 4-5 चीजें मिल जाए हर एक मेंबर को, जिसपे वो पूछेंगे। और वो डिवाइड कर लेते हैं नॉर्मली कि आप इस पे पूछिए, आप इस पे पूछिए। अब जब मैं एक इंटरव्यू में गया था, तो हर एक मेंबर ने मेरे जाने से पहले, और वो कोविड टाइम में हुआ था, तो वो मेरे मतलब साइड में थे, तो दिख रहा था। तो उन्होंने हर एक मेंबर ने 5-5 क्वेश्चन बना लिए थे, और जैसे वो पूछ रहे थे वो टिक कर रहे थे एक एक। तो आप चीज़ें सिंपल रखिए ताकि वो पिक कर पाए कि हाँ, इस पे ये क्वेश्चन। मतलब आप हर एक एंट्री, जैसे कि स्पोर्ट्स की एंट्री है, हॉबीज की एंट्री है, उसमें एक एक दो दो चीज़ें रखिए। बहुत ज़्यादा मत भरिए, क्योंकि पूछ नहीं पाए, और आपका प्रिपरेशन भी ईजी रहेगा। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन का बेसिक है कि डैफ के हर कीवर्ड पे आप क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, डैफ के मतलब वो जो WH वाला होता है ना, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सारे हर एक कीवर्ड को आपको प्रिपेयर करना है डैफ के। और मुझे लगता है इससे मतलब ये एक है पार्ट। और प्रैक्टिस, सेकंड पार्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको मॉक्स देने, और मेरे जो इंटरव्यू के नंबर बढ़े हैं, इसमें मॉक्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, मॉक्स दीजिए, काफ़ी ज़्यादा, जितने हो सके उतने मॉक्स दीजिए। और मॉक आपको फीडबैक के लिए नहीं देने हैं, ठीक है? आपको उनके फीडबैक का बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होने देना है खुद पे। आपको बस ये देखना है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि वो रियल लाइफ एनवायरनमेंट है। आप वहाँ जा रहे हो, और जो ड्रेस कोड वगैरह है, नॉर्मल प्रॉपर ड्रेस कोड सिंपल है। अगर आप ब्लेजर में कंफर्टेबल हो, ब्लेजर टाई, क्लीन शेव, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मतलब हर कोई करता है। बस इतना ही करिए। और जैसे तुम एक्चुअल इंटरव्यू में जो भी तुम्हारा गेटअप रहेगा, वैसे तुम 2-3 मॉक दीजिए, प्रैक्टिस करो। वन ऑन वन डिस्कशन है, वो जो रविंद्रन सर है, वाजीराम, उनके साथ तुम वन ऑन वन डिस्कशन मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने तीनों बार किया है। और उन्होंने एक मतलब एंड में वो एक रिकमेंड करते, मतलब बोलते हैं कि तुम्हें इतने नंबर आएंगे। मुझे तो हमेशा आए उस रेंज में। तो वो एक मैं रिकमेंड करूंगा इंटरव्यू के टाइम पे, कि आप वो करिए। अ, तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए और एक चीज़ है कि इंटरव्यू पे ना, मतलब तुम किसी का भी इंटरव्यू ले लो, चाहे मॉक ले लो या यूपीएससी इंटरव्यू ले लो, करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। चाहे प्रीलिम्स मेंस, ठीक है, तुम मैनेज कर सकते हो विदाउट न्यूज़पेपर, बट इंटरव्यू आप नहीं मैनेज कर पाओगे विदाउट न्यूज़पेपर। तो इंटरव्यू के लिए 2 न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़िए। चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, कोई भी 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, और उसी पे क्वेश्चंस आएँगे। और उस पर्टिकुलर डे आपका इंटरव्यू है, उस दिन तो वहाँ पे भी आपको यूपीएससी में भी न्यूज़पेपर मिलेंगे। उस दिन तो आपको पक्का पढ़ना है, क्योंकि मेरे दोनों 2 इंटरव्यू में उसी दिन की न्यूज़ पे क्वेश्चंस आए। अभी जो आर्टिकल 370 का था, उसी दिन द हिंदू में एक आर्टिकल था 370 पे, और वो मेंबर वहीं पे वो पढ़ रहा था, उसके हाथ में पेपर था। तो इसीलिए उसने वहाँ से क्वेश्चन उठाए। तो इंटरव्यू के लिए तो आपको पक्का न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बेसिक चीज़ें ये है कि मतलब
कितना कितना पढ़ना चाहिए, कितना डेली पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो देखो ये तो काफ़ी इन पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑन एन एवरेज एक 7-8 आप पढ़ो, उतना इनफ है। 7-8 अगर आप कंसिस्टेंटली एक 7-8 महीने के लिए पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है। और ऑब्वियसली प्रीलिम्स के 2 महीने पहले और प्रीलिम्स टू मेंस में ये टाइम बढ़ेगा, उस टाइम में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ऑन एन एवरेज 7-8 घंटे। और दूसरी चीज़ है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो टाइम टेबल के लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि अगले 2-4 महीने में आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, और उसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। और बाकी अकॉर्डिंग टू your priority you should divide time. For example, right now those who are appearing for 2025, your priority should be optional. So your broad timetable should have 4 months timeline for optional, and you should divide optional syllabus in that 4 months. And along with that you should just try to cover the basic books. और पर्टिकुलर डे में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप अभी फिलहाल 5-6 घंटे दीजिए ऑप्शनल को, और 2-3 घंटे जो बचते हैं वो आप दीजिए बाकी। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, कोई करंट अफेयर पढ़ रहा हो, कोई जीएस पढ़ रहा हो, तो उसके लिए टाइम दीजिए। तो मुझे लगता है ऐसा डेली डिवीजन करिए। और जब मिड जनवरी और जनवरी के बाद पूरा टाइम आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, पूरा टाइम प्रीलिम्स को दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही इरेटिक और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स के लिए देना पड़ेगा। और क्वेश्चंस है जैसे कि प्लान बी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि पहले आप एक ऐसे कर सकते हो कि एक 2-3 साल तो देखो यूपीएससी के लिए मिनिमम लगते हैं, क्योंकि आपको पहले साल में तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना सिलेबस हुआ है, कितना नहीं हुआ है। प्रीलिम्स आ जाएगी, मेंस आ जाएगी, आप किसी एक के लिए प्रिपेयर रहोगे, या आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर रहोगे या मेंस के लिए प्रिपेयर रहोगे। तो आपको लगता है कि हाँ 2-3 अटेम्प्ट आपने दे दिया, आपको लग रहा है कि आप इंटरव्यू तक गए हो, आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मतलब आप एक 2 साल देकर कर पाओगे क्लियर। तो मुझे लगता है कि तब ठीक है। पर अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट हो गए, मुझे लगता है कि आपको प्लान बी के लिए सोचना चाहिए, और प्लान बी की तैयारी आपको करनी चाहिए। और प्लान बी क्या हो सकता है, देखो अभी यूपीएससी के मतलब सिमिलर एग्जाम्स बहुत है, जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी है। आरबीआई ग्रेड बी काफ़ी अच्छा प्लान बी ऑप्शन लोग रखते हैं, जैसे कि नाबार्ड है। मुझे लगता है कि 3-4 साल टाइम देने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका कुछ कम नंबर से रह रहा है, तो ठीक है। पर नहीं तो आपको मुझे लगता है कि प्लान बी के लिए सोचना चाहिए। और प्लान बी आप साथ में पढ़ सकते हो, जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी अगर आप देखोगे वो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो उसके साथ आप पढ़ सकते हो। नाबार्ड है, आरबीआई ग्रेड बी, ये प्लान बी के ऑप्शंस मुझे लगता है अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ है कि बेसिक जो है डिस्ट्रैक्शंस से कैसे बचें। देखो मतलब जब मैं प्रिपरेशन में था, तो बेसिक डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं कि अगर आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो, आपके सारे दोस्त जो है उनको जॉब लगेगी, मतलब कोई कहीं जाएगा, कहीं फॉरेन में जाएगा, तो हाँ वो लोग सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करेंगे, आपके कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में आएंगे। एंड तब लगता है कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, रूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे बस आपको ये सोचना है कि अगर आप देखोगे कि यहाँ से 10 साल बाद अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आप सेलेक्ट हुए हो, तो यहाँ से 10 साल बाद आप बहुत आगे रहोगे, हर किसी से बहुत आगे रहोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर गिविंग टाइम फॉर योर ड्रीम्स, ओके, एंड इट विल टेक टाइम, and it is I would definitely say it is worth it. You just invest right now so that you can get out of it. तो और बेस्ट वे है डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड रखने रहने का, आप एंगेज रहिए आपके प्रिपरेशन में। तो यही पे सोशल मीडिया का रोल आता है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ें ये आपको डिस्ट्रैक्शंस देंगी, क्योंकि इन सारे मीडिया से आप कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट होगे जो आपको इम्पैक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप बस अवॉइड करिए सोशल मीडिया, पूरा आपके प्रिपरेशन में रहिए। और यू शुड continuously be involved in your preparation, your strategy. You should be constantly reviewing, मतलब how much syllabus you are completing, how is your preparation going, what you will be doing in the next 1 week, next 2 weeks. So you should be constantly thinking of all this. तो अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो द बेस्ट वे टू काउंटर टैकल डिस्ट्रैक्शन इज टू बी इन्वॉल्व विद द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में इतना इन्वॉल्व रहिए कि आपको कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है, आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो।
तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट वे है डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करने का। और सोशल मीडिया जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। एक बार अगर आपने 4-5 टॉपर्स के वीडियोस देख लिए, स्ट्रैटेजी बना ली, तो हर किसी टॉपर की आपको देख के स्ट्रैटेजी रिव्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, यूपीएससी में हर साल 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, 1000 स्ट्रैटेजीज है। एवरी साल 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, एवरी ईयर देयर आर 1000 स्ट्रैटेजीज पीपल आर क्लियरिंग विथ। So you make your own strategy. You just take inputs from 4 or 5 toppers, and if you make your one strategy, then stick to it. Don't change it, and you should not be just looking for the new content, new strategies. You should follow your own strategy, and वही आपको इवेंचुअली रिजल्ट देगा। तो अगर आप डिसाइड करोगे कि आपको ये करना है, आपका पूरा टाइमलाइन सेट है और आप पूरे टाइम आपके प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो, तो आपको बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। और बाकी अब जो आपने इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में है। पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? हाँ, पक्का होते हैं। पीवाईक्यू से क्वेश्चन थीम रिपीट होगा। अगर आप प्रीलिम्स देखोगे पिछले 10 साल के, अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो पीवाईक्यू पक्का रिपीट होंगे। तो आप पीवाईक्यू पे फोकस करिए। मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन पीवाईक्यू पे बेसिस पे रखिए। और आपकी सीसैट स्ट्रेटेजी कैसे रहती है तो मैंने बोल दिया है। आर्यन का एक जो बुक है और किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, उन्होंने पूरा टॉपिक वाइज कवर किया होगा। ये जो है कि आई एम करंटली स्टडिंग इन द क्लास आई वांट 10 आई वांट टू लाइक। हाँ, क्लास 10 में हो तो अभी मज़े करो, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद यूपीएससी का सोचो। अभी तो मुझे लगता है कि कुछ टेंशन मत लो प्रिपरेशन यूपीएससी को लेकर। अब जो है वो अच्छे से करो, क्योंकि इवेंचुअली वही हेल्प करेगा। क्लास 10th में हो यार, अभी क्या यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो? अभी मज़े करो। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, एक चीज़ है जो मतलब एस्पिरेंट का एक बड़ा क्वेश्चन है कि आप, क्योंकि यूपीएससी का जर्नी जो है बहुतों के लिए खींच जाता है, 4-5 साल का हो जाता है, तो उस टाइम में मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेबल रहे, वो अच्छी रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे तो लगता है कि एक चीज़ ये है कि आप क्लियर रहिए खुद से कि आप ये क्यों कर रहे हो और आप इसके लिए कितना टाइम देना चाहते हो और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब लोग तो कहेंगे, आपके 2-3 साल हुए तो लोग कहेंगे कि यार छोड़ दे, नहीं होगा तुझसे, कुछ और देख ले। लोग तो मतलब पक्का बोलेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। और देखो हर किसी से हो सकता है, मतलब कोई टॉपर कोई ऐसा कोई अलग कुछ दिमाग लेके आया नहीं है। ठीक है, हर साल लोग कर रहे हैं और हर तरह के लोग कर रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बस आप निगेटिविटी को टैकल करिए। और कॉन्फिडेंस के लिए आप देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कॉन्फिडेंस के लिए वो प्रिपरेशन है। आपका हार्ड वर्क आपको कॉन्फिडेंस देगा, और जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे देन योर मेंटल हेल्थ जो भी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये भी है कि मेडिटेशन वगैरह भी रिकमेंड किया जाता है, वो भी मुझे लगता है कि एक अच्छा वे है मेंटल हेल्थ। मतलब मेडिटेशन से लोग पीसफुल फील करते हैं, तो मुझे लगता है वो भी कर सकते हो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने बोल दिया है। प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो उसे, हाँ, अब देखो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बोला है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको लॉजिक पता चलेगा, तो लॉजिक पे बेसिस पे आप एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हो। और प्रीलिम्स में 90 अराउंड 90 अटेम्प्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको नहीं आएंगे, पर आपको लॉजिक के बेसिस पे यू हैव टू आंसर। इन केस ऑफ मेंस, देखो मेंस देयर इज अ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन हिस्ट्री जो आपको नहीं आ रहा है, सो यू जस्ट राइट समथिंग अराउंड इट and try to link that question to the current affair. Try to write the relevance of that particular question or the concept in the current life. तो ऐसे करके तुम मैनेज कर सकते हो, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो आंसर आ जाएगा और नंबर आ जाएंगे। और इंटरव्यू के केस में सीधा बोल दो कि आई डोंट नो। इंटरव्यू में कभी ब्लफ नहीं करना है, बिकॉज दे कैन इजिली कैच यू। सो इन केस ऑफ इंटरव्यू यू जस्ट ऑनेस्टली से सर आई डोंट नो, दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट आंसर यू कैन गिव। जीएस 3 का जो सोर्स पूछा है वो शून्य आईएएस और ओनली आईएएस के नोट्स रेफर करो, या ऋषिकेश रेड्डी जो सर के नोट्स है वो रेफर करो। एंशंट मिडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी कोई भी रेफर कर सकते हो आप, ओल्ड या न्यू कोई इसमें ये नहीं है। और मिडिवल के लिए वाजीराम का येलो बुक है, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो यूज़ कर सकते हो। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स बनाने के लिए देखो मुझे तो लगता है कि आप सिलेबस वाइज कीजिए।
नोट्स आपके सिलेबस वाइज होने चाहिए और उसके लिए पीवाईक्यू आप एनालाइज करिए कि पीवाईक्यू में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लिटरेचर पे नोट्स बना रहे हो पेपर 1 जीएस 1 में, तो लिटरेचर पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? लिटरेचर पे क्वेश्चंस आते हैं कि अ, उस पर्टिकुलर लिटरेचर में उस टाइम की सोशल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे डिपिक्ट की है, उस टाइम की विमेन की कंडीशन कैसे डिपिक्ट की है, तो आपके नोट्स भी उसी अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए बेस्ट गाइड है पीवाईक्यू। आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए? आंसर तो अभी बेसिक चीजें है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और ये हर पार्ट के लिए वेरी करेगा। ठीक है, और इसके लिए आप बेस्ट है जो मैंने मॉडल आंसर बोला है, शून्य आईएएस और एम के यादव का जो है आयदा है, सब इन दोनों के बुक्स पे आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगी कि पीवाईक्यू पे उन्होंने कैसे आंसर्स बनाए। अ, हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि मैंने कौन सी गलतियाँ की थी प्रिपरेशन में। तो देखो, पहले तो ये था कि मैंने ऑप्शनल वाइज़ली चूज़ नहीं किया था, तो वो एक गलती आप अवॉइड कर सकते हो। ऑप्शनल अच्छे से चूज़ करो। फिर उसके बाद है फर्स्ट मेंस में मैंने बिल्कुल आंसर राइटिंग नहीं की थी, तो वो एक गलती मैंने की थी। सेकंड प्रीलिम्स में मैंने सीसैट को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मेरा सीसैट रह गया था। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि मेरी गलतियाँ थी, इसलिए थोड़ा मेरा प्रिपरेशन मुझे 2-3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगे। आंसर राइटिंग तो मैंने बोल दिया है कि आप काफ़ी मतलब जैसे प्रिपरेशन शुरू शुरू कर रहे हो तब से कर सकते हो। टॉपर्स कॉपी का यूज़ कैसे करें, ये हमने एड्रेस किया है। और एंथ्रो में एक क्वेश्चन पूछा है कि एंथ्रो में विच सेक्शन विल फेच मोर मार्क्स। एंथ्रो में नॉर्मली जो फिजिकल वाला पार्ट है पेपर 1 का, तो उससे ज़्यादा नंबर आते हैं। फिजिकल है, फिर उसके बाद आर्कियोलॉजी है, इससे ज़्यादा नंबर आते हैं, तो ट्राई करो कि इस पार्ट से आप अटेम्प्ट कर रहे हो। हाँ, मैप्स का एक क्वेश्चन है कि मैप्स कैसे याद करें, मैप्स डिफ़िकल्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, आपके टेबल पे एक मैप लगा रहे और उस मैप को आप डेली डेली एक 10-15 मिनट आप मैप के सामने लगा रहे हो। और मैप के लिए ये भी कर सकते हो कि पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी के मैप रिलेटेड, उसको प्रैक्टिस करते रहो। और रिवीजन जो है, रिवीजन देखो, रिवीजन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बस प्लान रखना है कि आप प्रीलिम्स के लिए, देखो प्रीलिम्स के लिए आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो और मई में ख़त्म कर रहे हो, तो आपको इन बिटवीन एटलीस्ट 4 रिविजन्स करने हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है और हर रिविजन को आपको कम कम समय लगेगा, ऐसे आपको प्लान करना है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस बोल दिया। एंथ्रो ऑप्शनल क्यों लिया, उसके तो रीज़न है, नंबर एंथ्रो में अच्छे आ रहे थे उस टाइम, आज भी आते हैं, और सिलेबस भी थोड़ा सा मैनेजेबल है। साइंस एंड टेक का बुक है, साइंस एंड टेक के लिए वाजीराम के जो क्लास नोट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, वो रेफर कर सकते हो आप एवरी ईयर। ये न्यूज़पेपर रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे निकाले। न्यूज़पेपर देखो, मतलब एक कोई कंसिस्टेंट एक टॉपिक है जो कि कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहा है कुछ दिनों से, तो आप उस टॉपिक को पिक करो और उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। मतलब न्यूज़पेपर में ऐसे डेली बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई एक टॉपिक है जो कि कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे अर्बन फ्लडिंग है, या ओवरऑल फ्लडिंग है, वो हर साल रिपीट होगा, पर वो न्यूज़पेपर में भी कंसिस्टेंटली उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आती रहेगी उस टॉपिक पे, तो आपको बस वो पिक करना है और उस पे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आएंगे, तो ऐसे न्यूज़पेपर से टॉपिक आप पिक कर सकते हो। तो मोस्टली लगता है कि सारे क्वेश्चंस एड्रेस हुए हैं और जितना भी टाइम था 1 घंटा, उतने में मैंने इतना मैक्सिमम चीज़ें कवर की जा सकती उतनी की है। अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के अराउंड, और जब भी टाइम मिले मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और और एक क्वेश्चन है कि प्री के लिए लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन मुझे लगता है करने चाहिए, उतने अगर हो गए तो बहुत है। 2013 से जहाँ यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, 2013 टू 2023 जो लास्ट ईयर का पेपर है, या दिस ईयर का 2024, तब तक आप करो, दैट वुड बी इनफ। हाँ, मेंस के लिए 10 ईयर के पीवाईक्यू कर लिए तो बस है, मतलब प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए 10 ईयर के पीवाईक्यू करिए, उससे आपका बहुत मतलब मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड विद द पीवाईक्यूज, एंड बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस ऑल्सो। एंड फॉर द मेंस you will get the model answers prepared by the various classes. You just referred one or two for all the 10 years. I think 90% of your syllabus will be covered with those. And just try to make notes according to the questions asked and according to the syllabus headings. Okay.
So I think majority of the questions are answered. Okay, then I hope it will help. सारे जो भी बेसिक डाउट्स है वो मैंने आंसर करने की कोशिश की है, एंड आई थिंक इट विल हेल्प फ्यू ऑफ यू. एंड सर, हाउ टू कवर लक्ष्मीकांत? लक्ष्मीकांत के लिए एक ही चीज़ है यार, कवर टू कवर पढ़ो. यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत thoroughly and many times, because in both prelims and mains you will get a direct questions from Lakshmikant. So mug up the Lakshmikant. There is no other way to do it. Just read line to line, because that is the most important book for the UPSC preparation, be it a prelims or mains. And it's very easy. Okay, it's a kind of a very general understanding that everyone should have about our polity. So I think Lakshmikant, you can read it. Okay, that's all. Thank you all, and all the best.